हम ज़्यादा फोकस कर रहे थे एक गेम एट ए टाइम, उसकी टैक्टिक्स, उसका एग्जीक्यूशन कैसे करें, बस एक मैच जैसे फोकस करते रहे कि हमने ये कभी नहीं सोचा कि हम कितना अच्छा खेल रहे हैं, कोई और टीम के, हमने सब फोकस हम पे रखा और हमारे टैक्टिक्स पे रखा। बहुत खूब एंजॉय करें। जी जी, 2 टाइटल हो गए, बहुत बड़ी बात है। हाँ हाँ, पक्का अगले साल तीसरा भी आ सकता है सर। एंजॉय करा। थैंक यू हाँ नक्की सर, थैंक यू। Right, let's go to Vinci. I'm back with a couple of absolute champions. You're both 3-time winners now. You're still yet to lose a T20 final. How's that compare? That's right up there. I think obviously a little bit more relaxed within the group this year. Sort of got the monkey off the back last year in terms of a long wait for that first win. But I think the group just felt calm and composed throughout the whole tournament, really. Someone stepped up when they needed to be. I think we had, again, like 10 men in the matches. So amazing depth in the squad. Anyone who came in did a great job. And the bowler Booby is pretty special. Yeah, give us a couple of words about the great man. I can't remember a game where he went for over 35 runs. In this day and age, it's unbelievable. Got wickets up front nearly every game he played. It just took the heat off, I think, the rest of us. We could relax and we're bowling at numbers 4 and 5 in the power play. So it's pretty nice. And Booby, you finished second in the purple cap. I'm sure you would take a title any day over that. Yes, of course. I mean, trophy is the most important thing for us. I would trade any day with that. But yes, I mean, individually, season went well for me. There was planning. There were a lot of things before the season, and it went well. Talk us through what it's like to turn up to a game with just confidence that you know that if you perform near your best, generally that's good enough to beat any opposition in the world. Yeah, I think if you take wickets, there's always confidence is up, and I think coming into the big game like that, if you have performed well in the past, it always helps. But I think credit goes to each and everyone. If he didn't he didn't do well, I was there. If I didn't do well, Rasik was there. So I think we all had each other's back, and that's what you need in a big game like that. Just a couple of words about what this franchise means to you, to both of you, and also the backroom staff as well, who go unnoticed a lot of the time. Yeah, I think the franchise has been put together beautifully. Not just the players, but I think the support staff. Again, it's a nice, relaxed atmosphere to try and play your best cricket in and perform. I don't know, everyone just seems to have a good time in this group. I think it's hard to build that culture so quickly when the team changes quite a bit every 3 years, but it feels like we've got that now. Obviously winning helps, but it just feels like the team's quite a tight unit and we're playing for someone else other than ourselves a lot of the time. So it's a nice feeling. What are the thoughts on three-peat? Three-peat? Yeah, I can't see why not. Yeah, absolutely. Harsha, I think you've got Devdutt Padikkal. Right, Devdutt Padikkal alongside me. Played such a big part in giving those starts. It's been a revelation watching you. I've seen you for so many years, but the freedom this year. Tell us about your campaign, batting the way you did this year. Yeah, it's been incredible. Honestly, the entire group just batting with these guys has been really, really special. When you have such quality around you, I think it makes you go up a level, and I think that's what's happened with me. You're the batter. You obviously done very well, but how good was your bowling side today? I mean, you've got to take your hat off, don't you? Yeah, they've been unbelievable throughout the season. The plans that they execute day in, day out is incredible to see. I've been in a few meetings. I see how meticulously they plan, and when they go out there, they go and follow it to the T. So having that kind of professionalism is great to have, and that's what's put us in good stead. And how is it? Kunal, many congratulations. One more trophy in your bag. कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया फीलिंग है इरफान भाई. अगेन मैंने हमेशा क्रिकेट ऐसे ही खेला है जहाँ पे मेरा हमेशा गोल वही रहता था कि आई वांट टू विन टूर्नामेंट्स, आई वांट टू विन ट्रॉफीज, बिकॉज वो सबसे बेस्ट फीलिंग है. ऑब्वियसली आपको बहुत खुशी मिलती है इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देके मैच जीता के, बट वो जब आप ट्रॉफी जीतते हो it's a very special feeling. So I've always manifested winning trophies, and God's been kind. 11 years. This is my 5th IPL trophy, and yeah, just very happy. More than the skill से ज़्यादा आपकी जो काबिलियत है लड़ाई करने की, जो जज्बा है, एग्रेशन वाला, वो क्या आपकी सबसे बड़ी ताकत? बिल्कुल इरफान भाई. आई मीन ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें जिंदगी से भी सीखे, तो आई मेक श्योर दैट हाउ आई कैन अप्लाई एंड हाउ कैसे मैं गेम में बना रहा हूँ, कैसे मैं गिव अप नहीं करूँ और कैसे मैं टीम को हेल्प कर सकूँ. तो आई एग्री, वो एटीट्यूड बिल्डअप किया है कि आई डोंट वांट टू गिव अप, आई वांट टू बी देयर. सो
अभी तक वो हेल्प किया है। एक वक्त तक आरसीबी के जो फास्ट बॉलर्स हैं उससे ज्यादा बाउंसर डालने वाले गेंदबाज कुणाल पंड्या है। बैक कैसी है? बैक बढ़िया है। एक्चुअली बैक में कोई दिक्कत हुआ नहीं जितने भी बाउंसर डाले, बट हाँ वही मतलब जिस तरीके से गेम इवॉल्व हो रहा था तो मैं सोचा कुछ अलग नया करूँ, तो बाउंसर और स्लिंगर ट्राई किया। होपफुली अभी नेक्स्ट ईयर थोड़ा और स्पीड बढ़ाना है ट्रेनिंग करके, आई कैन टच 125-130 कंसिस्टेंटली। मेरी जितनी स्पीड। नहीं, विशिंग यू ऑल द लक। थैंक यू Many congratulations. थैंक यू सो Keep मच। up the great work. थैंक यू। कि खुशियां क्यों नहीं होंगी, आपने टाइटल जीता है, लेकिन अब इन खुशियों की, इस एहसास की आदत हो गई आरसीबी को, और वो एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 17 साल का जो इंतजार था, पिछले सीजन के इमोशंस शायद बहुत मुश्किल मैच करने, बट इट्स नाउ अबाउट डोमिनेशन। आइए चलते हैं इरफान के पास, वापस साथ में है स्विंग के जादूगर। स्विंग पहले भी किंग था, स्विंग आज भी किंग है। कितनी भी जनरेशन चेंज हो जाए, कितने भी तेज खेलने वाले बल्लेबाज आ जाए, अगर गेंद हिलती है तो बल्लेबाज हिलता है। और इसी वजह से मेरे साथ है आज स्विंग के किंग भुवनेश्वर कुमार। भुवी, बहुत बहुत मुबारक हो। जिस तरह से आपका ये साल रहा है, जिस तरह से आपका फिटनेस रहा है, कोई एक चीज अगर पीछे मुड़ के देखेंगे जो आपके लिए इस सीजन सबसे ज्यादा क्या काम आई है? नहीं, ये कहना टफ है, क्योंकि सीजन से पहले क्या प्रिपरेशन रहती है वो बहुत मैटर करता है मेरे लिए। और सिर्फ बॉलिंग की बात नहीं है, क्योंकि बॉलिंग मैं सालों से करता रहा हूँ, बट फिटनेस एक ऐसी चीज़ है कि जिसने मेरा पूरी सीजन साथ दिया है। क्योंकि आसान नहीं होता 14 लीग गेम खेलना, फिर 2 या 3 प्ले ऑफ्स खेलना। बट आई थिंक एक चीज़ जो मैं बोलूँगा कि जो गेम चेंजिंग रही है, आई थिंक फिटनेस जो मैंने ऑफ सीजन में की है। और एब्सोल्युटली वो जो फिटनेस है वो साफ साफ नजर आ रही है मैदान में। लेकिन हमने देखा है कि आप आउट स्विंग कर सकते हैं, इन स्विंग कर सकते हैं, जिसके बारे में मैंने पहले आपसे बात भी की थी ऑन एयर, कि वो जो स्क्रैम्बल सीम का इस्तेमाल आज आपने इस सीजन लगातार किया है, क्या वो सीजन से पहले की तैयारी थी या फिर जैसे सीजन चली है, पिचेस देखी है, वैसे बदलाव किया है? आई थिंक स्क्रैम्बल सीम मैं काफ़ी पहले से डालता आ रहा हूँ, बट इस सीजन ज़्यादा यूज़ किया है, क्योंकि विकेट क्या डिमांड कर रहे थे। इवन 1-2 बॉल डालने के बाद आइडिया लगता है कि क्या काम करने वाला है। तो हाँ, इस सीजन ज़्यादा यूज़ किया है, दिमाग में रखते हुए कि विकेट क्या हेल्प कर रहा है। और देखिए, ये जो आपकी टीम है, आपको एक लीडर मानती है इस टीम का, क्योंकि आपका सिर्फ जिम्मेदारी जो है वो विकेट निकालना नहीं है, लेकिन बाकी गेंदबाजों को भी चलाना है। जैसे यंग खिलाड़ी आया, पिछले साल यश दयाल था, उसको चलाना। इस साल राशिक सलाम आया, उसको चलाना। उसमें आपका रोल, और साथ ही में कितना एंजॉय करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी? अपने आप इंजॉय होने लगती है अगर आप खुद पर्सनली अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप पर्सनली अच्छा करते हैं कॉन्फिडेंस ऊपर रहता है। और जैसे राशिक की बात करें, यश की बात करें, आई थिंक एज अ सीनियर प्लेयर कोशिश करते हैं, बट क्रेडिट उन्हें भी जाएगा, वो जितना सीखना चाहते हैं, जितना उनके अंदर लगन है। तो आई थिंक जितना मैंने काम किया उससे ज़्यादा क्रेडिट उनका जाता है कि उन्होंने जितना सीखा, सिर्फ मेरे साथ नहीं, हिजलवुड के साथ या और बॉलिंग कोच के साथ। तो आई थिंक जो हमारा एक थर्ड बॉलर मिसिंग था, यश दयाल, जिन्होंने लास्ट ईयर अच्छा किया, और राशिक ने जिस हिसाब से उस जिम्मेदारी को पूरा किया, आई थिंक उन्हें बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। देखिए, ट्रॉफी तो सबसे ऊपर रहेगी, लेकिन एक चूज करना है आपको, ओवर कवर छक्का जो आपने लगाया था, या इन स्विंग बोल्ड शुभमन गिल को, क्या चूज करोगे? आई थिंक ओवर कवर छक्का। रीजन है, मैं नहीं बोलूंगा मेरी वजह से जीते हैं, बट उस गेम को जीतने के बाद काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं। और अगर लास्ट ईयर की सिमिलरिटी देखें, एक मैच था अगेंस्ट एलएसजी जिसमें जितेश ने बहुत अच्छा किया था, वो जीतने के बाद एकदम काफ़ी चीज़ें चेंज हुई थी। और इसमें इस सीजन में जो एमआई से मैच जीते हैं, वो जीतने के बाद काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं। तो आई थिंक वो ओवर कवर छक्का बोल। आप ऐसे खेलते रहो, आप चेंज मत हो। वेल डन, थैंक यू। वेल डन, वेल डन। रवि शास्त्री के साथ इस समय खड़े विराट कोहली। आकाश, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के जो फैंस भी हैं, वो भी शायद जो एहसास इस समय कर रहे होंगे, जो महसूस कर रहे होंगे, हो सकता है वो पिछले सीजन से अलग हो। पिछले सीजन इमोशन जो थे वो अलग तरीके के थे, वो एक राहत थी, वो थोड़ा सुकून था। लेकिन अब ये डोमिनेशन की दास्तान है। हम आईपीएल के डबल चैंपियंस को देख रहे हैं जिन्होंने डिफेंड किया है, लेकिन अभी डब्ल्यूपीएल की ट्रॉफी चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपने दौर